ममता जी, आपकी पार्टी में आपका पॉलिटिकल सक्सेसर कौन होगा? आप सक्सेशन प्लानिंग I have so many. I have set up my 5 generation. So whoever belongs to our generation, they will continue up to 15-20 years. Then there is a next generation. Then there is a third generation. Then there is a fourth generation. Now I am trying to find out the 5th generation, my new generation. I always welcome the young generation because we know that we won't be here so long. नया जनरेशन आएंगे, नौजवान आएंगे, तो अभी भविष्य देश का बचेंगे. हम चाहते हैं नया जवान आगे आए. और आपके फैमिली से अभिषेक जी, आपके नेव्यू? वो तो एक ही है, वो तो कोई नहीं है. हमारा पार्टी से सब पॉलिटिक्स करता है, लेकिन कोई पोजीशन में नहीं है. अभिषेक क्या अकेला है? हम भी उसको बोला कि कोई नहीं आएगा यंग जनरेशन, तो काम कैसे होगा? तो वो भी नहीं आने चाहते थे. हमने उसको बोला, और ये लोगों को तो सर्विस करने का इसको करियर सब अच्छा है, लेकिन वो छोड़ के आया इसी के लिए. वो पार्टी को पसंद करते हैं. और वो जब छोटे थे, 2 साल के थे, तब सीपीएम हमको इतना पिटा कि हमारा आई वॉज अबाउट टू डाई. पार्लियामेंट भी बंद हो गया था, पार्लियामेंट एडजर्न हो गया था. मेरे को पूरा दिस ब्रेन ऑपरेटेड हुआ. देन मेरे को पूरा ब्लड इतना निकाला था, इतना पूरा 46 stitches are there in the heads. So even you see my hands, it is also they have beaten me like anything. Full body is choked. That time he was very small. He was 2.5 years old. That time he has seen all this in his eyes, and from that time it was his intention that I will join with Didi. They say me the Didi. जी जी. So from that time it was his intention to join. I cannot stop anybody. But our party, I am telling you, he is also just a elected member of the party, a government MP as a elected member, and it is the people's choice. People elected him, so he is a people's leader. ममता जी, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में आप कैसे लाएंगी? जैसे पिछले 5-6 सालों में देखा गया है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा वेस्ट बंगाल में नहीं आया है. 5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 15,000 करोड़ करीब वेस्ट बंगाल में आया है. कुछ बोला है, पूरा झूठा. कौन बोलता है? If you see my capital expenditure, I am telling you, it is 11% high. If you see my GSDP, it is 6% high than central government. So far I know. Amit Mitra can tell you the details. If you see my revenue earnings, it is triple increased, tripled, 3 times increased. When I came in before 7 years ago, it was 21,000 crores. Now it is about 63,000 crores. Can you imagine? This is absolutely wrong. I am telling you, even Bengal, unemployment, from the unemployment view if you see, देश में 2 लोगों का रोजगार चला गया, 2 करोड़ आदमी का, और बंगाल में 40% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया है. It is our credit, I am telling you. Even I have in my state 144 crores the working days, the man days we have grown. Even if you see now 100 days work, we are number 1 in India. If you see Narega, the Abasan Yojana program, we are number 1. Rural road construction, we are number 1. Skill training, we are number 1. Minority scholarship, we are number 1. MSME, we are number 1. Even Kishan, we have got 6 years the Kishan Karman Award from Government of India. And you will be happy to know my one scheme Konyasri has got United Nations Public Service Award number 1. And this time, before this 9th of April, this World United Nations and along with all the world organization, they have selected my Utkarsh Bangla project for the skill development, where we are number 1. Because we give training 6 lakhs youth every year, and we give them the employment also, just like campus interview. So that is also number 1. So there are so many schemes. It is absolutely right they are saying. Even for this, after we came in, हम स्टार्ट किया है बिजनेस ग्रो करने के लिए. हमारा बिजनेस जो ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें हमारा 3 साल में 2.5 लाख करोड़ करके हमारा इन्वेस्टमेंट आ गया. फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा जी से नंबर ज़्यादा तो आपको याद है? नहीं, वो थोड़ा है. क्यों नहीं रहेगा? अमित दा इज माई गुड फाइनेंस मिनिस्टर, ही इज डूइंग ए लॉट. हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने जो किया है, ई गवर्नेंस ऑल्सो वी आर नंबर 1. IT also, the sector, I am telling you. Even we are doing the Silicon Valley, replica of Silicon Valley already started. We have already done our international convention center in Calcutta, and so also we are doing it in Digha. We have so many things. We have the financial hubs. We have all created, everything has been created in Bengal. So Bengal is now number 1 in India, I am telling you. And Gujarat, what they said, that is totally lie, blatant lie, what they announced. And this time, that's why their industrial meet was flopped. And ours, you ask even from all the corporate house, who didn't attend? From Mukesh Ambani to Sajjan Jindal to Sanjeev Goenka to Lakshmi Mittal. ममता जी, जब हम लोग यहाँ आए तो मैंने देखा आप बाहर
वॉक कर रही थी, वॉक करते करते काम भी कर रही थी, दिन भर में आप कितना कितना चल लेती हैं, कितना वॉक कर लेती हैं? इट डिपेंड्स ऑन टाइम। अभी इलेक्शन का टाइम है, इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन 20 किलोमीटर्स एवरेज आई डू इट। आई लव टू डू इट। हाफ मैराथन तो आप रोज दौड़ती हैं? नहीं, वो बात नहीं है। आज नहीं, हम पूरा जिंदगी भर करते हैं, लेकिन 2004 से हमें शुरू किया, 6 से। जब 2006 में हम हंगर स्ट्राइक किया था किसान के लिए, किसान जमीन फोर्सफुली ना कोई दखल हो, इसी के लिए मैंने 26 डेज हंगर स्ट्राइक किया था। हम पीने का पानी भी नहीं पिया। तो वो टाइम के बाद हमारा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। My kidney was about to damage, my liver and gallbladder, so all the things. Then I took only drinking water for 3 months only, and after that my doctor advised me to walk and to keep 1 hour for my health. So from that day I do the treadmill and all. 10 kilometers I used to do the treadmill and 10 kilometers I walk. और आप सुनते हैं खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, कोई बता रहा था कि हम बहुत पसंद करते हैं खाना बनाने के लिए। हमारा घर में महिला लोग जो खाना बनाता है कितना टेस्टी होता है बोलो। अगर कोई नमक ज़्यादा डाल दे तो क्या खाना कैसा होगा? अगर कोई मिठाई ज़्यादा डाल दे तो खाना कैसे होगा? वुमेन जो खाना बनाता है ना, इवन बॉयज ऑल्सो दे आर द गुड कुक। इफ यू सी उड़ीसा एंड अदर्स यू विल सी, एंड देयर आर सो मेनी गुड रेस्टोरेंट एंड रेस्तोरां। सो खाना बनाना भी एक आर्ट होता है। हमको तो बहुत पसंद है। आपको टाइम मिलेगा तो हम फेवरेट डिश, I love everything to do. I have no special things. So जब आपके पास खाली समय रहता है पेंटिंग भी करती हैं, मैंने सुना है कि म्यूजिक कंपोज भी करती हैं और लिरिक्स भी लिखती हैं। हाँ, म्यूजिक हमारा तो चलते हैं, इसी के लिए हम तो देखिए हम 8 साल हमारा पेंशन अबाउट 75,000 हो गया पार्लियामेंट में। हम 7 साल एक पैसा भी नहीं लिया। कितना लाख रुपया हम गवर्नमेंट को बचाया। हम जिंदगी भर इकोनॉमिक क्लास में चला तो कितना हम वो जो जाने आने का जो DATA मिलता है वो भी कितना हम 91 से पूरा सेव किया। तीसरी बात ये है, हम इधर में चीफ मिनिस्टर हुआ है, हम एक पैसा भी नहीं लेता, हम गाड़ी भी नहीं लेता, और हम उसका हम कोई गेस्ट हाउस में रहते तो मेरे पैसे से रहता है। अगर आप पूछेंगे कैसे आपको पैसा आता है, हम चीफ मिनिस्टर का सैलरी मिलने से भी हमारा 1 लाख मिलता है। हमको पेंशन भी 1 लाख का करीब है, तो 2 लाख का करीब तो हम कुछ नहीं लेता। चाय भी पीता है आप उनका पैसा से। अगर आप पूछेंगे कैसे करते हैं, हमारा 87 बुक पब्लिकेशन हो गया है। इसमें बहुत सारे हमारा जो है वो बेस्ट सेलर है। हमको जो रॉयल्टी मिलता है, और म्यूज़िक में जो रॉयल्टी, पेंटिंग से हम 1 पैसा भी नहीं लिया कभी, हम उसको दे दिया, डोनेट कर दिया। लेकिन लिरिक में हम जो म्यूज़िक देते हैं और लिरिक जो देता है उसमें हमारा पैसा आता है, और बेस्ट सेलर बुक के लिए आता है। इसमें जो मिलता है वो मेरे के लिए काफ़ी है, ज़्यादा नहीं होता है। ये दफ़े ये ईयर में हम तो म्यूज़िक देखिए, इंद्रशील लेन उधर में बैठे हैं, इंद्रनील सेन, ही इज़ ए नंबर 1 आर्टिस्ट इन बंगाल, आई एम टेलिंग यू। तो वो लोग का हमको वो तो रॉयल्टी दिया वो उसको कंपनी से, एक CD के लिए 3 लाख रुपया रॉयल्टी दिया साल में। और बॉइस बुक में हमारा जो एजेंसी है हमारा, जिससे बुक प्रिंटिंग करते हैं, वो हमारा बहुत बुक बॉय बेचता है, बहुत बेस्ट सेलर होता है। उसमें हमको 10 से 11 लाख मिल जाता है। तो इतना रुपया कौन खाएगा? हमारा क्या चाहिए, हम तो अकेला लोग हैं, तो इसमें हो जाता है, बहुत सारे बचता है, उसको हम दे देते हैं। ममता जी, मैं आप बहुत लोगों से, आपको जो जानते हैं उनसे मिला, तो बहुत आदर है आपका, बहुत सम्मान भी है, लोग आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, मगर कभी ना कभी थोड़ा आपके गुस्से से डरते भी हैं। तो ममता जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तो उसको ही आता है ना जो सच कहते हैं। गुस्सा तो उसको ही आता है जब कोई अन्याय होता है। गुस्सा तो उसको ही आता है जो अत्याचार को रुकता है। गुस्सा तो उसका ही होता है जो एजिटेशन को पसंद करता है। हमको गुस्सा है तभी आता है जब जनता के ऊपर अत्याचार होता है, कोई इनजस्टिस होता है, ऐसे गुस्सा नहीं होता है। आपका साथ में हम बात करते हैं, हम थोड़ा नरेंद्र मोदी है, हम एक इंटरव्यू देखा, करुण थापड़ ने कुछ क्वेश्चन किया तो उन्होंने उठ के चला गया। मैंने ऐसा नहीं करते, मैंने जब तक हमारा डाइजेस्ट करने का है हम करेंगे। अगर कुछ में बोलना है तो मैं आपको भी बोल देता है कि आप लोग भी, मीडिया लोग का भी खाली नरेंद्र मोदी करता है, क्यों? आपको भी बैलेंस होना चाहिए। आप भी देखो देश का लोग क्या चाहते हैं। देश का लोग तो अब जड़ में मीडिया खुलते नहीं है, देखने से खाली बीजेपी, खाली मोदी, किसी को बोलने ही नहीं देता है। थैंक्स टू यू दैट यू आस्क मी 1 इंटरव्यू। अभी तो हम लोग देते भी नहीं है इंटरव्यू, क्या करेगा? लगता है देने से क्या फायदा है। ममता जी, आपने हमसे बात की, हमको मालदा बुला के इतना समय दिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपको हम बहुत बहुत, आपका न्यूज़ 18 चैनल जितना भी है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसी के लिए कि आप देश भर में काम करते हैं। जर्नलिस्ट के ऊपर मेरे को बहुत बहुत, आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नलिस्ट। आप लोगों को कोई गलती नहीं होता है, आप लोग तो काम करते हैं। सो आपने भी इतना मुश्किल तरीक़ा से इतना दूर से आए हुए हैं और मेरे को थोड़ा बोलने का मौका दिया है, इसी के लिए आपको हम शुक्रिया अदा करने चाहूँगी। फिर आपको मालदा का आम खाने के लिए
मैंगो खाने के लिए, मालदा का मैंगो बहुत फेमस है जरूर। और इसका एक मिठाई भी मिलता है, तो उसको भी खाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करेंगे। जरूर खाएंगे, थैंक यू। आज जरूर बंगाल में आइए। जरूर। और झूठा बात जो दिल्ली में बैठ के करता है, बंगाल का उसमें मिट्टी का साथ उसका कोई संपर्क नहीं है, वो आसमान से छूता है लेकिन वो मिट्टी को पहचानता नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू योर टीम।